Good morning, students. My name is Suhas Gunnar, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, chapter number 5, the 8051 Programming in C हमने स्टार्ट कर दिया था. तो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शंस एंड द डेटा टाइप इन सी. अभी इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि हमने जो इंस्ट्रक्शंस प्रीवियस चैप्टर में देखी कि डेटा टाइप है या ट्रांसफ़र है, दैन एनालॉग्स है, लॉजिकल है, एंड गेट और वो है. तो वो एक्चुअली हम जो ऑपकोड फॉर्म में लिखते हैं यानी कि प्रोसेसर के फॉर्म में, बट अगर वही प्रोग्राम मुझे प्रोग्रामिंग सी में करना है तो किस टाइप से होगा. सो देर आर द 3 कॉमन लैंग्वेज विद द 8051 फैमिलीज: सी, basic and the assembly language. So the C does indeed the contains many such features like the structures programming, defined procedures calling, then parameter passing, powerful control structure and etc. So C is the universal assembly language. So 8051, the size of the memory is 4K or 8K bits and the data memory is 128 bits. Now the programming in the assembly language is tedious and the time consuming, so the C programs are easier to modify and updates, so it use the code available in the functions library. So C code is portable to the microcontrollers with the little or no modifications. Now the writing in the simple programming in C. अब C में किस तरह से हम लिखते हैं. So the first line of the 8051 is has include register 51.h. So here after has includes हम ब्रैकेट में लाइंस लिखते हैं which one the follow by the list of the subroutine used in the program जो ऑलरेडी उसके लाइब्रेरी में है. then after we have the main functions with the local variables declarations. So generally the microcontroller one power upkeep the executing the one machine code after the other starting from the location is 00 in the ROM space. So उसको किस तरह से हम करते हैं. तो here s jump here यानी कि वो कंटिन्यूसली सब रूटीन में रहेगा. एंड दी while functions, तो while 1 यानी कि हमको सब रूटीन के बाद जैसे हम if और लिखते हैं वैसे ही. Now in the right in the C program is implemented by using the statement while. So in the C program task 1, 2, 3 etc which have to be repeated are enclosed in the while one loop यानी कि एक वन टाइप ऑफ लूप है जो कंटिन्यूसली उसमें हम जब तक हमको हमारा आउटपुट नहीं मिलता है यानी कि डिले रखना है या कुछ भी रखना है तो हम यहाँ पे while लूप का यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर द while loop open a floor bracket and the repeat the task to be performed. Then after the main, so example is main bracket declaration initiation initialization part यानी कि हमको अगर कोई कैरेक्टर या इंटीजर लेना है वो. then after the non repeat task जो टास्क को हम रिपीट नहीं करना चाहते वो हम एक्सिक्यूट करेंगे. then after the while, so while 1 is the write the task to repeat in while loop. then after the bracket then task 1 and then after the end of the while loops and end of the main. So these are the basic format of the writing of C program. then after the data type, तो unsigned character. अभी unsigned character since the 8051 is in the 8-bit microcontroller and the unsigned character is a 8-bit data type values, the range is 0 to 255 0 to FF. So these are the examples. So write a C programs to display the value of 00 to 50 to the port 0. अब port 0 में 00 to 50 वैल्यूज़ पुटअप करनी है. तो हैज़ इंक्लूड हमने पहले रजिस्टर्स 51.h जो है इनिशियली वो. देन आफ्टर द void main एंड ब्रैकेट में अनसाइंड कैरेक्टर z लिया है. अब z की वैल्यू किस तरह से लेनी है. 0 इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियल इज़ 0, देन i लेस देन और इक्वल टू 50 यानी कि 50 तक वो कंटिन्यू रहेगा. एंड देन आफ्टर z प्लस प्लस और वो वैल्यू कहाँ पे पुटअप करनी है P0 में यानी कि port 0.
अनदर एग्जांपल्स, यहाँ पे कैरेक्टर्स दिए गए हैं और पार्ट 1 में रखना है। तो अगेन द हैज़ इंक्लूड 51.h वॉइड मैन अनसाइन कैरेक्टर x। अब यहाँ पे वैल्यूज़ ऑलरेडी दी गई है। यहाँ पे क्या था कि हमको वैल्यू 0 to 55 कंटिन्यू लेनी है, तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर लिया है कि भाई कैरेक्टर थ्रू करेंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई है तो वैल्यूज़ पहले कैरेक्टर में लेनी पड़ेगी, तो कैरेक्टर x और वो ब्रैकेट में, तो इज इक्वल टू ए पैटर्न है जो अगर वैल्यू हमको दी गई है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि हम जो x है उसमें सारी वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। देन आफ्टर अगेन द x अनसाइन कैरेक्टर z, देन z इक्वल टू 0, z लेस देन और 8, यानी कि ये टोटल 8 कैरेक्टर है, एंड z प्लस प्लस। अब पॉट 1 में इक्वल टू x डॉट z, यानी कि z तो 0 आएगा, तो पहले कौन सी वैल्यूज़ है 0, देन आफ्टर 1 तो 1, देन 2 आएगा तो 2, 3, देन आफ्टर a b c d। सो दीज आर दी अनदर एग्जाम्पल्स। सो दीज आर दी डेटा टाइप, साइज एंड डेटा रेंज एंड यूसेजेस, यानी कि डेटा टाइप कौन कौन से है, तो अनसाइन कैरेक्टर, साइन कैरेक्टर, अनसाइन इंटीजर, साइन इंटीजर, एस बीट, बीट और एस एफ आर। तो ये हमने लास्ट में देखा था। देन आफ्टर अनदर एग्जांपल्स ऑफ द डेटा टाइप। सो ये हमने लास्ट टॉपिक में देखा था। नाउ द टुडेज टॉपिक इज द डिले जनरेशंस एंड द इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग। सो डिले जनरेशंस क्या है? So there are the two way to create the time delay in the 8051. So क्या कौन कौन से है? The using for the loop, एक लूप के हिसाब से जैसे हमने आगे देखा, and using the 8051 timer. So in the creating time delay using for the loop, we must mindful of the three factors that can be affect the accuracy of the delay। यानी कि अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो हमको कुछ एक्यूरेसी रखनी पड़ती है, जैसे कि वर्जन ऑफ 8051। सो द नंबर ऑफ क्लॉक पीरियड पर मशीन साइकिल इज़ 1, 4, 12 etc इज़ वेरी अमोंग द डिफरेंट वर्जन ऑफ द 8051 और 52 माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि हर माइक्रो कंट्रोलर के अलग अलग वर्जन्स हैं। तो द नंबर ऑफ क्लॉक पीरियड पर द मशीन साइकिल इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्रामर्स। Second one is the crystal frequency of the crystal connected in the 8051 microcontroller. So the durations of the clock period for the machine cycle is functions of this crystal frequency. And the last one is the type of the C compiler, यानी कि जो C compiler है वो। So the version of 8051, then crystal frequency and type C. So the different compiler produce the different code. So the exact time delay produced by the C code is very difficult to compute, and the execute the time delay has to measure by using the oscillator after compiler and running the program. So the four, अगर हम ये इंस्ट्रक्शन जैसे हमने आगे देखा, is the different compiler it is used for the different versions of the 8051 microcontroller. Now the another one, अगर यहाँ पे आपने देखा कि 255 यानी कि 8051 कंट्रोलर है। नाउ अब 1275 एक्सिक्यूट दी DX89C4X0 माइक्रो कंट्रोलर विद द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी इज 11.0592। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था, मेगाहर्ट्ज प्रोड्यूस द 1 मिलीसेकंड। सो विद द ओरिजिनल 8051 कंट्रोलर हैव द 12 क्लॉक प्रोड्यूस द 12 मिलीसेकंड्स, यानी कि 12 क्लॉक जनरेट करेगा 12 मिलीसेकंड्स में। सो द जनरेट द लार्ज टाइम डिले saying that 250 millisecond for the loop executing is 250 times. So 1 clock is a 1 millisecond, so 250 millisecond का हमको डिले चाहिए तो 250 टाइम्स करना पड़ेगा। Now take a one example. So write and the 8051 C program to toggle the bit, toggle करना है यानी कि ऑन ऑफ करना है, of the P1 port 1 continuously forever with the some delay। अब वो रैंडमली लेना है। ओके, तो फर्स्ट एज अ नोट दैट दे हैज़ इंक्लूड द रजिस्टर फाइल 1.h void main अनसाइंड इंटीजर i, हमने यहाँ पे i लिया है। देन वाइल लूप को रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे
द फॉर एप्सिलॉन, सो रिपीट फॉर एवर। नाउ अब हम क्या करेंगे, पॉट 1 में एक वैल्यू लेंगे 0 to x55, ओके। देन आफ्टर फॉर द I इक्वल टू 0, देन I लेस देन और इक्वल टू 40,000 एंड द I प्लस प्लस, यानी कि रन द लूप फॉर द 40,000 टाइम्स विदाउट एनी ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, यानी कि वो वैल्यू कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करेगी। देन आफ्टर द P1 0xAA, यानी कि A ऑन एंड ऑफ, वो 40 टाइम्स, सो दिस विल बी क्रिएट सम डिले, सो दोनों डिले के लिए यूज़ होगा। सो दिस इज द वन एग्जांपल फॉर द डिले। Now the another example, write the program to generate the square wave of the 250 millisecond on a time and 50% duty cycles on the pin P1 2.2, okay। So has include register R1, register 51.h, so void ms delay, हमको delay यूज़ करना है, untimed integers, so this one वो क्या करेगा, so the parameters of the time अनसाइंड इंटीजर इज पास टू द डिले सबरूटीन के लिए। देन आफ्टर द वॉइड में देन वाइल, अब क्या करना है, पॉट 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि मेगा पिंग इज लो। देन आफ्टर द ms डिले 250, so call the delay loop with the parameter is 250। देन आफ्टर 1 कर देंगे, यानी कि पिन हाई कर देंगे, टोटल किया हमने, यानी कि स्क्वायर वेव का हाई पिकअप जाएगा पहले 0, देन हाई पिकअप एंड ms डिले कब तक रहेगा 250, सो कॉल द डिले लूप विद द पैरामीटर इज 250, वो कंटिन्यूसली होगा। सो ms डिले अनसाइंड इंटीजर काउंट, सो अनसाइंड इंटीजर ij, सो फर्स्ट वन द फॉर द I इक्वल टू 0, I काउंट I प्लस प्लस, यानी कि आउटर लूप रिपीट कंटिन्यूस काउंट टाइम्स एंड द j इक्वल टू 0, j 1 2 7 5 j प्लस प्लस, सो इनर लूप रिपीट फॉर द 1 मिलीसेकंड डिले। सो यहाँ पे क्या होगा, दिस वन आर दी स्क्वायर वेव जनरेट, यानी कि जो स्क्वायर वेव है, जैसे कि हम 0 रखेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट 0, देन आफ्टर दी सम डिले, देन आफ्टर वो क्या करेगा, स्ट्रेट जाएगा, देन आफ्टर 1 करेंगे तो हाई जाएगा, देन अगेन स्ट्रेट, देन 0 स्ट्रेट, यानी कि स्क्वायर वेव उस तरह से जनरेट होगा। Now the next example, write the program to generate the square wave of the 75% duty cycle with the on time of the 30 millisecond on the port P1। अब सॉल्यूशन, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टी ऑन टाइम डी, यानी कि ड्यूरेशन हमको फाइंड करना है, तो टी ऑन टाइम डिवाइड बाई टी ऑन टाइम प्लस टी ऑफ टाइम इक्वल टू, अब यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है 75%, यानी कि 0.75 एंड विद द टाइम ऑन दी 30 मिलीसेकंड, यानी कि टी ऑन टाइम दिया हुआ है 30 मिलीसेकंड, तो टी ऑफ टाइम मिल जाएगा 10 मिलीसेकंड। सो हैज़ इंक्लूड दी REG 51.h, then void main and void ms delay unsigned integers, void main while 1, then port 1 ms delay। अब यहाँ पे हमने फाइंड कर दिया है t on टाइम कितना है 30, सो t on टाइम इज 13, ऑन टाइम डिले, देन 1 कितना, t ऑफ टाइम ऑफ कितना रखना है कि 10, तो 10, सो void ms delay unsigned integer count, so unsigned integer ij, then value is like this। तो these are the execute the, अब 1 कब तक रहेगा, सॉरी यहाँ पे 0 रहेगा, 0 कब तक रहेगा 30 मिलीसेकंड, यानी कि स्ट्रेट 30 जाएगा, देन आफ्टर 1 कब तक होगा 10, देन अगेन स्ट्रेट डाउन, ओके। नाउ द बिट एड्रेसेबल एंड इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग। अब बिट एड्रेसेबल क्या है, सो इज द इनपुट आउटपुट पोर्ट P0 to P3 आर द बिट एड्रेसेबल। जैसे हमको पता है कि पोर्ट P0 to P3 है, सो वी कैन एक्सेस द सिंगल बिट विदाउट द डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिजल्ट ऑफ द पोर्ट। सो एग्जांपल देखते हैं, सो राइट एंड द 8051C प्रोग्राम टू टॉगल द पिन P1 2 कंटिन्यूसली विदाउट ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिजल्ट ऑफ द बिट ऑफ द P1। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, कंटिन्यूसली लेना है और
डिस्ट्रीब्यूटिंग करना है. सो हैज़ इंक्लूड देन आफ्टर द एज बीट माई बीट इज हमने पॉट P1.2 ले लिया है ना वॉइड में वाइल. अब माई बीट इज़ 1, अब 1 होगा टर्न ऑन होगा P1.2 एंड माई बीट 0 टर्न ऑफ द P1.2. सो इसमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग अब पॉट 1 में नहीं रखना है, सीधो डायरेक्टली हमको पॉट P1 में 2 पिन ओपन करनी है और ऑफ करनी है. ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, राइट द C प्रोग्राम to the monitoring the door sensor connected to the port 1 first pin and when the door open sound is buzzer. यानी कि यहाँ पे क्या एक सेंसर है, बजर है, connected the port 1 5 pin and buzzer is sound by the sending the square wave of the new handed hertz. now तो इसमें क्या होगा, void then register 51 then void ms delay unsigned integer. अब एस बीट सेंसर लेंगे हम, कौन सा है सेंसर, पॉट 1 to 1 एंड दी बजर इज पॉट 1 to 5. नाउ अब सेंसर इक्वल टू 1, सेंसर 1 होगा वाइल द सेंसर इज़ 1, तो कब हो क्या होगा, द बजर इज इक्वल टू 0 इफ़ द डोर सेंसर ओपन. सो P1 इक्वल टू 1 यानी कि 1 होगा तब बजर बजेगा. सो एम एस डिले इज़ 200. नाउ द बजर इज़ 1, सो एम एस डिले इज़ 200. सो द अनसाइंड इंटीजर आई जे इन सेम वे. तो यहाँ पे क्या होगा, सेंसर हमने 1 लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंसर कनेक्टेड है. व्हेन द डोर इज़ ओपन द साउंड ऑफ द बजर कनेक्टेड इन दी, यानी कि डोर जब ओपन होगा. अब यहाँ पे क्या है, सेंसर 1. अब वाइल लूप में सेंसर को हम डायरेक्ट लूप अप करेंगे, यानी कि सेंसर में जब 1 होगा यानी कि बंद है डोर, तो बजर नहीं बजेगा. अब बजर कब बजेगा कि जब यहाँ पे P1 इक्वल टू 1 होगा तब उधर बजेगा. तो आउटपुट इज रनिंग दी बजर. नाउ द असाइन SFR रजिस्टर 8025 FFH. सो अनदर वे टू एक्सेस द SFR RAM space 802 FFH is to use the SFR data type specific registers. So the port P02 P3 being the special functions register in the RAM space of the 8051 and using the data type of SFR. अब यहाँ पे क्या है, SFR यूज़ करने के लिए SFR रखेंगे. So we can assign the variable name for the port. So when we use the SFR, जब SFR यूज़ करते हैं तो we can avoid the including the header file register 51.h. अब जब ये यूज़ करते हैं तो हम ये रजिस्टर हैज़ इंक्लूड यूज़ नहीं करते हैं. So these are the port 0 to port 3. So port 0 to 0 एड्रेस है 80, then 81 2 3 4 5 6 7. देन पॉट 1 के लिए है 90 91 92 93 94 96 97. देन पॉट 2 के A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 एंड पॉट 3 के लिए B0 to B7 and the port pin is B0 to B7. So these are the combinations and the port address is here. Now we can see there one example. Write a 8051 C program to send the 552 port 0. अब क्या है कि प्रोग्राम लिखना है, सेंड करना है वैल्यूज 55 हैज़ टू port 0. इफ़ द बीट P1.5 बीट इज़ दी हाई एंड सेंड द AA टू द port 2 इफ़ द P1.5 इज़ लो. यानी कि port 1 की 5 पिन अगर हाई है तो 55 भेजना है और लो है तो AA भेजना है. ओके, सो नाउ दिस आर दी. अब यहाँ पे हमको 2 पॉट है. सो द SFR port 0 is 0x80. सो port एड्रेस ऑफ द P0. तो यहाँ पे क्या है, port 0 है. सो 80 यानी कि port 00 क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है, मेंशन नहीं है. देन आफ्टर द port 0 A0 तो डिक्लेयर द port एड्रेस. नाउ void में while लूप. नाउ इफ़ अब क्या है कि P1
पॉइंट कैरेक्टर 5 इज इक्वल टू 1, यानी कि वगन है, यानी कि हाई है, तो क्या होगा कि पोर्ट 0 में क्या भेजना है 5, तो 0x55 इफ़ द हाई सेंड टू द 5 एल्स, इफ एल्स यहाँ पे यूज़ किया है, देन पोर्ट 2 इज इक्वल टू AA। अब यहाँ पे ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि P1 कैरेक्टर 5 इज इक्वल टू 0। इफ़ एल्स का मीनिंग है अगर 1 है तो पोर्ट 0 में ये वैल्यू पुटअप करनी है, अगर नहीं है तो पोर्ट 2 में डबल ए भेजना है। ओके, दीज आर दी सिंपल एग्जांपल्स ऑफ द SFRs। Another example, to write the 8051C program to get the status of the 8-bit status of the bit P1 port 0 and save it and send to if the port 2.7 continuously। अब यहाँ पे क्या करना है, जो पोर्ट 10 में हमको स्टेटस चेक करना है और वो P2 में 7 बिट में भेजना है। सो हैज़ इंक्लूड रजिस्टर 51.h, सो एस बिट इन बिल्ट। अब इनपुट चेक करना है किसका, पोर्ट 1 का 0 में, एंड द एस बिट आउट बिट कहाँ पे भेजना है P2 7 बिट में। सो बिट इज़ अ मेम बिट वॉइड मेन वाइल। सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि बिट को हमने, यानी कि जो पोर्ट 1 जो वैल्यूज़ है उसमें हमने क्या किया है एम बिट कंसिडर किया है। सो एम बिट इक्वल टू इन बिट, वो चेक करेगा कि भाई इन बिट में क्या है, गेट द बिट फ्रॉम द पोर्ट 10, यानी कि इन बिट में जो होगा वो एम बिट में जाएगा और कहाँ पे भेजना है आउट बिट में। सो आउट बिट इज़ अ एम बिट, यानी कि एम बिट की जो वैल्यू है वो आउट बिट में, यानी कि P2 7 में सेंड हो जाएगी। तो दीज आर दी वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दी send the values. So today's we can see that the SFR, then input output or bit accessible programming, and with the examples. If any query regarding this topic you can call me. If any questions regarding this topic you can mail me. My mail ID and the contact number is in your screen. Thank you.